Hello student, how are you? Today we will discuss a new topic, single phase induction motor. There are two words in this topic, one is single phase and one is induction. Means single phase induction motor, the supply voltage is single phase and mutual induction principle in this single phase induction motor. This is a circuit diagram of single phase induction motor and this is a motor. देखिए, when you apply a single phase supply in this motor, this is single phase supply and these are windings, and this is known as rotor. You know that rotor is the rotating member of the machine and stator is the stationary member of the machine. This is known as shaft and this rotor is known as squirrel cage rotor. जब आप इसमें सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है which is alternating in nature. When the rotor is in the place in this magnetic field, then EMF is induced. EMF induced होगा according to the Faraday law of electromagnetic induction. And when the circuit is closed, then the current is flowing. Current flow होगा. Okay. When you apply a single phase supply, a magnetic field is produced. Then magnetic field is produced means, suppose this is north pole in this side and this is the south pole. When the supply is AC, जब आप supply AC दे रहे हैं, this is the AC supply. When there is a positive cycle, then this is north pole and this is south pole. When the cycle is changed in second half cycle, when this is negative cycle, then at this time this is south pole and this is the north. Means suppose the force applied in the clockwise direction. When the fields are changing, south and north pole, then the torque in the opposite direction. It means that the rotor is confusing. रोटर आपका कंफ्यूज हो रहा है कि आपको किस टाइम में मूव करना है, इधर फॉरवर्ड में मूव करना है और यू मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन. इट मीन दैट रोटर डज नॉट स्टार्ट रोटेटिंग. रोटर आपका स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा बिकॉज इट इज कंफ्यूजन वेदर इट इज मूव्स इन द फॉरवर्ड वाइज डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड वाइज डायरेक्शन. मीन्स single phase induction motor constructionally, this motor is more or less similar to the polyphase induction motor except that its stator is provided with a single phase winding. क्या डिफरेंस होता है आपका थ्री फेज और सिंगल फेज में? इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर only one winding is present in the single phase, which is only single phase. But in the three phase induction motor or polyphase, more than one phase, then his stator is provided with a थ्री फेज वाइंडिंग. सिंगल फेज में क्या होती है, एक वाइंडिंग होती है और जबकि थ्री फेज में आपकी कितनी वाइंडिंग्स होती हैं? थ्री वाइंडिंग्स होती हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, व्हेन यू अप्लाई थ्री फेज सप्लाई, जब आप थ्री फेज सप्लाई देते हैं, मैंने लास्ट वीडियो बताया जब आप थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है विच इज रोटेटिंग इन नेचर. Means a rotating magnetic flux is produced in the three-phase induction motor. In a single-phase induction motor, only one flux is produced, which is only alternating, one which alternate along one space axis only. थ्री फेज सप्लाई में आपका एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जबकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है विच इज अल्टरनेटिंग और पल्सेटिंग इन नेचर. तो आपका अल्टरनेटिंग और पल्सेटिंग फ्लक्स जब प्रोड्यूस होगा तो सपोज द रोटर इज मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेक्स्ट साइकिल इज मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड. इट मीन दैट रोटर डज नॉट स्टार्ट रोटेटिंग. रोटर आपका स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा. और इस मोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस है? इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ओनली वन वाइंडिंग इज प्रेजेंट, सिंगल वाइंडिंग. इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर there are three phase winding which are displaced by 120 degree.
In this motor, a centrifugal switch is produced in order to cut out a winding used only for the starting purpose. इसमें एक स्विच होता है जो कि किसके लिए यूज होता है? फॉर द स्टार्टिंग पर्पस. It is not synchronous revolving as in case of a 2 or 3 phase winding fed from 2 or 3 phase supply. आपका ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो रिवॉल्विंग फ्लक्स नहीं होता. तो हम अगर रिवॉल्विंग फ्लक्स होगा तभी आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा. और इसमें जो फ्लक्स आता है विच इज पल्सेटिंग और अल्टरनेटिंग फ्लक्स. दैट्स व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ओनली द सिंगल फेज और पल्सेटिंग फ्लक्स, नॉट सिंक्रोनस रिवॉल्विंग फ्लक्स एज इन केस ऑफ ए 2 और 3 फेज सप्लाई. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जब 3 फेज सप्लाई देते हैं तो एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है विच इज रिवॉल्विंग फ्लक्स whose speed is synchronous speed which is equal to ns equal to 120 f by p. जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक ही फ्लक्स प्रोड्यूस होता है which is alternating in nature. अब alternating in nature है तो that's why single phase induction motor does not develop starting torque. आपने देखा होगा कि आपका फैन जो है अगर जब खराब हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको किसी को स्टार्टिंग टॉर्क दे दी जाए तो आपका फैन रोटेट होने लगता है. इट मीन दैट हमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क देना होगा. मीन्स यू गिव एन स्टार्टिंग टॉर्क. इफ द मोटर स्टार्ट रोटेटिंग और रोटर स्टार्ट रोटेटिंग then it oscillates to final speed. That's why single phase induction motor is not self-starting. However, if the rotor of such a machine is given in still start by hand or small motor or otherwise in either direction, then immediately a torque arises and motor oscillates to its final speed. जैसे ही आपको उसको इनिशियल स्टार्ट दे देंगे तो हमारा मोटर या रोटर आपका रोटेट होने लग जाएगा और मोटर oscillate हो जाएगी to its final speed. That's why single phase induction motor is not self-starting. लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा था? 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग. उसको कोई स्टार्ट करना नहीं पड़ता, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को आपको स्टार्ट करना पड़ता है. आपने ये सारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहाँ देखे? इट इज यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस. जो आपके फैन लगे होते हैं, ओके, जो मोटर्स लगी होती है, पानी की मोटर्स होती है, वाटर मोटर्स, जो फ्रिज में आपकी मोटर्स लगी है, ऑल आर सिंगल फेज मोटर. क्योंकि आपके यहाँ सप्लाई कौन सी आ रही होती है? सिंगल फेज सप्लाई आपकी आ रही होती है. इज इट क्लियर? तो हमारे पास आपने क्या पढ़ा? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. व्हाई? बिकॉज इन दिस मोटर द फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज ओनली अल्टरनेटिंग और पल्सेटिंग फ्लक्स, नॉट रिवॉल्विंग फ्लक्स एज इन केस ऑफ ए 2 और 3 फेज मोटर. तो होता क्या है अल्टरनेटिंग और पल्सेटिंग फ्लक्स में? तो अल्टरनेटिंग पल्सेटिंग फ्लक्स में क्या होता है? फर्स्ट द रोटर मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, then next cycle it reverses in the backward direction, means rotor does not start rotating. Or you can say that two opposite torque are developed during positive cycle and negative cycle. अब आपको मोटर को स्टार्ट करना है. अभी आपकी मोटर स्टार्ट नहीं है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक and make the motor self starting, it is temporarily converted into 2-phase motor during starting period. आपको इसको स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा इन ए 2-phase मोटर ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड. स्टार्टिंग में आपको 2 या 3 फेज मोटर्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. मीन यू कन्वर्ट सिंगल फेज मोटर इनटू 2 और 3 फेज मोटर. देन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस पर्पस द स्टेटर ऑफ सिंगल फेज मोटर इज प्रोवाइडेड विद एन एक्स्ट्रा वाइंडिंग known as starting or auxiliary winding in addition to the main or running winding. आपको एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग और लगानी पड़ेगी. दिस इज नोन एज स्टार्टिंग वाइंडिंग इन एडिशन टू द मेन वाइंडिंग. तो आपको कुछ दोनों वाइंडिंग में कुछ फेज डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना होगा. उस फेज डिस्प्लेसमेंट से ही आपको रिवॉल्विंग फ्लक्स क्रिएट होगा. इफ द रिवॉल्विंग फ्लक्स इज क्रिएट देन टॉर्क इज डेवलप, अदरवाइज नॉट, एज इन केस ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर. लास्ट वीडियो में हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर को मैंने क्या बताया था? जब आप 3 फेज सप्लाई देते हैं तो एक फ्लक्स आता है which is known as revolving flux whose speed is synchronous speed. जब आपका फ्लक्स आ जाता है तो EMF इंड्यूस हो जाती है, then torque is developed. But in this case, I repeat, the flux is which is only alternating or pulsating flux, not revolving flux as in case of a 2 or 3 phase induction motor.
The two windings are spaced electrically apart and are connected in parallel across the single phase supply. It is so arranged that phase difference between the currents in the two stator winding is very large, ideal being 90 degree. ये आप अभी पढ़ेंगे कि आपने क्या करते हैं, तो एक्चुअली टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा. अल्फा की वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 डिग्री. तो मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करने के लिए आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग में आपको कितना फेज डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, 90 डिग्री. देन द मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप. मैक्सिमम टॉर्क मींस मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क इज डेवलप एंड द मोटर बिहेव्स लाइक ए टू फेज मोटर. तो आपके पास टू फेज मोटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक स्टार्टिंग वाइंडिंग लेनी पड़ेगी और एक मेन वाइंडिंग आपकी होती है. और स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग में आपको फेज डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना पड़ेगा टू मेक ए रिवॉल्विंग फ्लक्स. आपको रिवॉल्विंग फ्लक्स क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, तो टू फेज मोटर में बोथ द वाइंडिंग्स आर डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री. These two current produce, ये आपके दोनों करंट क्या करेंगे, प्रोड्यूस ए रिवॉल्विंग फ्लक्स एंड द मेक द मोटर सेल्फ स्टार्टिंग. तो आपके पास दो वाइंडिंग होगी, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक मेन वाइंडिंग. इन स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग का फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 90 डिग्री. तो ये दोनों वाइंडिंग आपको क्या करेंगे, एक फ्लक्स प्रोड्यूस कर देंगे विच इज रिवॉल्विंग इन नेचर. रिवॉल्विंग हो जाएगा, देन द मेक द मोटर सेल्फ स्टार्टिंग. देयर आर मेनी मेथड ऑफ टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग. स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर. There are four methods for starting of single phase induction motor. I repeat, split phase. Split मतलब हम लोग को दोनों वाइंडिंग को स्प्लिट करना है, एंगल क्रिएट करना है. कैपेसिटर लगाना है, कैपेसिटर स्टार्ट ओनली फॉर द स्टार्टिंग पर्पसेस. कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर मीन कैपेसिटर स्टार्ट भी कर रहा है और कैपेसिटर रन भी कर रहा है. तो आपने घरों में देखा होगा जो फैन लगे होते हैं आपके, तो कौन सी मोटर्स होती है, सिंगल फेज में टाइप कौन सा होता है, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन. इसके बाद हमारे पास कौन सी मोटर है, टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर. ये दो कैपेसिटर लगाएंगे आपको. देखिए, फर्स्ट इज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. स्प्लिट करना है. इसमें होता क्या है, पहले मैं आपको फेजर डायग्राम दिखा देता हूँ और सर्किट डायग्राम. ये आपकी मेन वाइंडिंग है, दिस इज द मेन वाइंडिंग, दिस इज एक्सिलरी वाइंडिंग. एक एक्सिलरी वाइंडिंग में आपने एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया और एक स्विच लगा दिया, दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल स्विच. ऐसे ही नोन एज सेंट्रीफ्यूगल स्विच. मेन वाइंडिंग है आपका, दिस इज फेजर डायग्राम, दिस इज वोल्टेज V. अब आप देखिए इसमें हाई रेजिस्टेंस है, एक्सिलरी वाइंडिंग था, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ज्यादा रेजिस्टेंस लगा हुआ है. इफ देयर इज ए हाई रेजिस्टेंस then voltage lead the current by a small angle because it is resistive in nature. There some inductance is present in the windings. Inductance तो होगा आपका. तो voltage lead the current by a small angle. Main winding has high inductive, low resistive, then voltage lead the current by large angle. It means that there is a phase displacement created between the starting winding and the main winding. स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के डिस्प्लेसमेंट में आप कितना फेज डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर देंगे. ओके, ये आपका इसको फेजर डायग्राम, इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए आपने, देन दिस इज द इक्विवेलेंट करंट आई की वैल्यू आ गई. तो ये जो आपका फेज डिस्प्लेसमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं आप लोग, किससे, आपने एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग लगा दिया. तो इसमें फेज डिस्प्लेसमेंट जो लगभग अप्रोक्सीमेट कितना आ जाता है, 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाता है. ये आपने एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया. देखिए मैंने क्या, इन ए स्प्लिट फेज मोटर द मेन वाइंडिंग है लो रेजिस्टेंस बट वेयर स्टार्टिंग वाइंडिंग है हाई रेजिस्टेंस बट लो रिएक्टेंस. स्टार्टिंग वाइंडिंग देखिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ हाई रेजिस्टेंस है और मेन वाइंडिंग के साथ लो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस इसके इंटरनल पार्ट में इंक्रीज. दिस इज नोन, यू नो दैट दिस इज नोन एज रोटर and this is single phase supply. The resistance of the starting winding may be increased by connecting a high resistance in series with it or by choosing a high resistance fine copper wire for winding purpose. देखिए रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस. The current IS drawn by the starting winding lags behind the applied voltage by a small angle. देखिए ये स्मॉल एंगल से क्रिएट हो गया.
whereas I am taken by the main winding lag behind the voltage by large angle. ये आपका वोल्टेज जो है लार्ज एंगल से क्रिएट हो गया. Phase angle between ISM is made large as possible because the starting torque of split phase motor is proportional to sin alpha. हमें इसको लार्ज बनाना है क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क इसके प्रोपोर्शनल होता है साइन अल्फा. अल्फा क्या होता है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन द स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट एंड द मेन वाइंडिंग करंट. ये आपका इन दोनों के बीच में अल्फा होता है. तो अल्फा आपको क्रिएट करना है, लार्ज एंगल क्रिएट करना है. तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग, तो इसमें स्प्लिट फेज मोटर में आपका अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री तक एंगल आ जाता है. ओके, तो इस मेथड में आपने स्प्लिट कर दिया स्टार्टिंग वाइंडिंग को और मेन वाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट. अब नेक्स्ट हमारा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर. देखिए आपको वर्ड से भी पता लग रहा है कैपेसिटर स्टार्ट मींस कैपेसिटर यूज ओनली फॉर द स्टार्टिंग पर्पसेस. इन दिस मेथड a centrifugal switch S and capacitor is connected in series with the starting winding and is located inside the motor. इस मोटर में क्या है आपका कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर लगा हुआ है आपका. कैपेसिटर इन सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज कनेक्टेड. दिस इज नोन एज स्टार्टिंग वाइंडिंग. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. दिस इज नोन एज मेन वाइंडिंग. ये सिंगल फेज सप्लाई. दिस इज नोन एज रोटर. दिस आर द रोटर कंडक्टर्स आर प्लेस्ड. All are short circuited and this is a rotor shaft. This is known as centrifugal switch. Okay. अब देखिए आपने क्या किया, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर लगा दिया. When the capacitor is connected in the starting winding, then current lead the voltage. Last previous में क्या था? Voltage lead the current. When the capacitor is connected, then current lead the voltage. When the current lead the voltage means that this alpha angle start increasing. मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाता हूँ. लास्ट वाले में देखिए, लास्ट में आपने अभी इस मेथड में पढ़ा था कि हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू थी. दिस इज नोन एज अल्फा. और इस सर्किट डायग्राम में जब व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड देन दिस इज अल्फा. दिस अल्फा इज मोर एज कंपैरिजन टू द लास्ट मेथड. अल्फा की then in this case alpha is 70 to 80 degree as comparison to the previous case. When the alpha start increasing then the starting torque start increasing. फेजर डायग्राम आपने कैसे ड्रॉ किया? This is the applied voltage V. When the main winding, all the windings are inductive in nature, voltage lead the current. When the capacitor is connected in the circuit, then current lead the voltage. इसमें आपका अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? 70 to 80 डिग्री. अप्रोक्सीमेट 80 डिग्री तक आपके पहुंच जाएगा. व्हेन अल्फा इंक्रीजिंग, साइन अल्फा इंक्रीजिंग में स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्ट इंक्रीज. स्टार्टिंग टॉर्क फॉर द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ठीक है. A centrifugal switch S and capacitor is connected in series with the starting winding located inside the motor. पढ़ चुके हैं. The two currents are out of phase with each other by about 80 degree as compared to the 30 degree for a split phase motor. आउट ऑफ फेज में हो गए आपके. देखिए एक इधर जा रहा फेज, एक इधर हो गया. दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में हो गए. ओके. Each function is automatically disconnect the starting winding when capacitor run from the supply when the motor has reached to 70 to 80% of its full load speed. जब आपकी मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 70 to 80% रेटेड स्पीड पे पहुंच जाएगी तो आपका ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा. Then starting winding and capacitor both are disconnected from the circuit. Only main winding is connected in the circuit. तो ये तो वाइंडिंग किसके लिए लगी हुई थी? आपकी स्टार्टिंग पर्पस के लिए. जैसी मोटर 70 to 80% मींस मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गई, वैसे मोटर आपका ये स्विच क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा. स्विच ओपन हो गया तो दिस वाइंडिंग इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट. हमारी डिस्कनेक्ट हो जाएगी इससे सर्किट से. Consequently starting torque much more than that of split. तो आपने क्या निकाला कि जो प्रीवियस मेथड था स्प्लिट फेज मेथड, उसमें क्या होता है? इसमें हमारा स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा इंक्रीज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर. जैसे आपने कैपेसिटर लगाया तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज हो गई बिकॉज स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू sin अल्फा. इन दिस केस द अल्फा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 80 डिग्री. द लास्ट स्प्लिट फेज मेथड द अल्फा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 30 डिग्री. This is a circuit diagram and the phasor diagram of
capacitor start. Next is capacitor start and capacitor run motor. आपको वर्ड से पता लग रहा है कैपेसिटर स्टार्ट करने के काम भी आ रहा है और कैपेसिटर रन करने भी आ रहा है। आपकी जो मोटर लगी होती है घरों पे, तो फॉर द डोमेस्टिक पर्पजेज दिस इज द परमानेंट कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर सिमिलर टू द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एक्सेप्ट दैट स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन द सर्किट एट ऑल टाइम। जबकि आपने इसमें देखा कि इस केस में आपका एक स्विच लगा होता है। इस स्विच को जैसे ही मोटर 70 to 80% स्पीड पहुंचती है तो ये स्विच क्या ओपन हो जाता है, तो हमारा कैपेसिटर क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। बट इन दिस केस द कैपेसिटर दे नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्टेड इन द सर्किट ऑल टाइम। देखिए तो कोई आपका कैपेसिटर कोई स्विच नहीं लगा हुआ आपका कैपेसिटर के साथ, परमानेंट कैपेसिटर। दिस इज नोन एज परमानेंट कैपेसिटर स्टार्टिंग मेथड। ये परमानेंट कैपेसिटर होता है आपका, कोई आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है जो आपके डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। दिस इज नोन एज रोटर, मेन वाइंडिंग, रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया, मेन वाइंडिंग हो गई, दिस इज नोन कैपेसिटर एंड दिस इज नोन एज वाइंडिंग। वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। दिस इज नोन एज स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड दिस इज नोन एज मेन वाइंडिंग। इसमें भी आपका कैपेसिटर लगा हुआ, पर लास्ट केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच था, इसमें देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन दिस मेथड। देखिए एक्टिव वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, इन दोनों के बीच में अल्फा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, कैपेसिटर लगा हुआ, कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड द वोल्टेज, जबकि ये इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव में क्या होता है, वोल्टेज लीड द करंट, वोल्टेज लीड द करंट, देन दिस फेज डिस्प्लेसमेंट इज क्रिएटेड between the two windings. In main winding and starting winding in series with the capacitor, since capacitor remains in the circuit permanently, this motor is often referred to as permanently split capacitor run motor. This is also known as permanently split capacitor run motor. मैंने बता दिया आपको। This is the graph between the percentage of full load torque versus percent of speed. फुल लोड टॉर्क देखिए स्टार्टिंग में क्या है, टॉर्क की वैल्यू आपको ज्यादा चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता चला जा रहा है, देखिए बढ़ता चला जा रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क स्पीड बढ़ रही है, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होता जा रहा है। व्हेन द मोटर रीच 70 to 80% और 70 to 80% देन स्टार्टिंग टॉर्क, अब आपका फैन रोटेट हो गया, अब तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए नहीं, मोटर तो एक्सीलरेट होगी फाइनल स्पीड पे, देन स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्ट डिक्रीजिंग। स्टार्टिंग में क्या आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए, फैन को रोटेट कराने के लिए स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। जैसे ही आपकी मोटर 70 to 80% स्पीड पहुंच गई, मीन मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गई, अब तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए नहीं, तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। दिस इज द ग्राफ वर्सेस परसेंटेज ऑफ फुल लोड टॉर्क वर्सेस परसेंट ऑफ स्पीड। नेक्स्ट मेथड क्या है, टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर। अब देखिए वर्ड से पता लगा टू वैल्यू, मतलब दो कैपेसिटर आप इस मेथड में कनेक्ट करेंगे। मैं आपको पहले सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, दिस इज नोन एज रोटर, दिस इज एक्टिव वाइंडिंग जो हमने पढ़ी थी, दिस इज नोन एज मेन वाइंडिंग। इन दिस केस देयर आर टू कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन दिस सर्किट, दो कैपेसिटर कनेक्टेड है और सप्लाई क्या सिंगल फेज एसी सप्लाई है। देखिए जैसे ही स्टार्टिंग में क्या होगा, दिस स्विच इज क्लोज, आपका स्विच क्लोज हो जाएगा, बोथ द कैपेसिटर कनेक्टेड इन द सर्किट एंड दिस कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब कैपेसिटर पैरेलल में होंगे कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज होगी। यू नो दैट व्हेन द कैपेसिटर इन पैरेलल टोटल कैपेसिटर इक्वल टू CR plus CS मींस C1 plus C2। कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इट मीन दैट अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इट मीन दैट साइन अल्फा इंक्रीज हो जाएगा, साइन अल्फा इंक्रीज हो जाएगा, इट मीन दैट स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन द मोटर रीचेस 70 to 80% ऑफ द रेटेड स्पीड देन दिस कैपेसिटर दिस सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज ओपन। जब ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा तो हमारा जो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट। तो स्टार्टिंग में तो आपके दोनों कैपेसिटर रहेंगे, जब मोटर 70 to 80% हो जाएगी तो ये स्विच ओपन हो जाएगा, स्विच सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो हमारे पास केवल ये रनिंग वाला कैपेसिटर हमारा सर्किट में रहेगा। दिस इज स्टार्टिंग एंड रनिंग, तो ये जो रनिंग वाला कैपेसिटर है ये हमारे सर्किट में रहेगा। देखिए क्वाइट मोटर, two value capacitor motor is very quiet motor with high starting torque by using two capacitor in parallel at the start and switching one for the low value। तो हमारे स्टार्टिंग में दोनों कैपेसिटर हैं और रनिंग में only one capacitor is connected in the circuit। This motor start with a high capacitor in series
विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग सो द स्टार्टिंग टॉर्क इज, स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी बिकॉज स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, अल्फा इंक्रीज हो जाएगा, साइन अल्फा इंक्रीज हो जाएगा, तो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा. For running a low capacitor is substituted by switch, both starting and running winding remains in the circuit. ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया. देखिए फेजर डायग्राम, टॉर्क वर्सेस फुल लोड स्पीड एंड फेजर डायग्राम. दिस इज नोन एज फेजर डायग्राम. सेम प्रीवियस केस की तरह, दिस इज एक्चुअली वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, दिस इज द मेन वाइंडिंग, दिस इज टोटल करंट आई. देखिए ये आपका अल्फा आ गया और दिस इज पैरेलल में बनाया, पैरेलल में वोल्टेज सेम. So current lead the voltage or for the starting winding and when the voltage, देखिए ये आपकी starting winding और auxiliary winding से कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगने पे क्या होगा, करंट लीड द वोल्टेज. जबकि आपकी मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग इंडक्टिव होती है, इंडक्टिव में क्या होता है, वोल्टेज लीड द करंट, तो आपका फेज डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाएगा. दिस इज द ग्राफ टॉर्क वर्सेस परसेंटेज ऑफ फुल लोड स्पीड. देखिए स्टार्टिंग टॉर्क आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, जैसे स्पीड इंक्रीज हो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज हो रही है आपकी. जैसे ही हमारा मोटर स्पीड पहुंच जाएगी 70 to 80%, देन स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा. सपोज ये क्या है आपका मेन प्लस जो है रन कैपेसिटर ओनली, खाली कैपेसिटर, इसमें बोथ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड. अगर हमारे दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड है तो देखिए स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो गया. ये प्रीवियस केस का है. प्रीवियस केस में क्या है, जब आपके केवल कैपेसिटर रन कैपेसिटर, केवल वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट, when both the capacitor, then this torque is more as comparison to the one capacitor. तो आप दो कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा. देखिए 300% है, ये लेस देन 300% है आपका. तो जब आपने बोथ एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग both the capacitor are connected, then the starting torque is more as comparison to the only one capacitor is connected in the. What are the applications? You know the applications. सिंपल एप्लीकेशन यही है आपकी जो आपके डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होती है. सिंगल पे इंडक्शन मोटर. द सिंगल पे इंडक्शन मोटर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, चीप इन कॉस्ट, रिलायबल एंड इजी टू रिपेयर एंड मेंटेन. आसानी से रिपेयर. ड्यू टू ऑल दीज एडवांटेजेस, सिंगल पे इंडक्शन मोटर फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन वैक्यूम क्लीनर्स, फैंस, वॉशिंग मशीन्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ब्लोअर्स. ओके, यूज होती है. कंक्लूजन क्या है, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. आपने आज क्या क्या डिस्कस किया, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड मेथड ऑफ स्टार्टिंग. आपने क्या क्या डिस्कस किया, कैसे. एक बात क्लियर कर दीजिएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर. सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती है, को स्टार्ट करना होता है. देयर आर 4 मेथड फॉर द स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. मैंने आपको बताया थे, स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट and run induction motor and two value capacitor. ओके, तो आज हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का और स्टार्टिंग मेथड क्या है, हमारे मेथड ऑफ स्टार्टिंग क्या है आपके मेथड. ओके, थैंक यू, बाय बाय.